Hello students, today I am going to teach you assignment of second semester examination 2021 and subject is English grammar. Students, मैंने कल आपको सेक्शन ए पहले सेक्शन ए दिया था, बी सी हो गया है सेक्शन. अब सेक्शन सी का मैंने जो पार्ट 1 कल दिया था आज देती हूँ मैं सेक्शन सी का पार्ट 2. नाउ वी स्टार्ट सेक्शन सी पार्ट 2. Rewrite the sentences choosing the appropriate word from those given in the brackets. Section C, Part 2. Rewrite the sentences choosing the appropriate word from those given in the brackets. Number 1. We need a good instrument to draw a perfect circle. In bracket weapon, tool, instrument, we write here instrument. Number 1. We need a good instrument to draw a perfect circle. So we write here instrument. Number, he was attacked in dash daylight. In bracket wide, clear, broad. Wide, clear, broad. We write here broad. He was attacked in broad daylight. Number 3. Alexander Graham Bell dash the telephone. एलेक्जेंडर जो ग्रेहम बेल था, जो साइंटिस्ट था, उसने इन्वेंटेड किया क्या शोध की द टेलीफोन. यहाँ है इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड, फाउंड आउट और राइट आंसर इज डिस आएगा यहाँ इन्वेंटेड. एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन. जो टेलीफोन है उसकी इन्वेंट किसने क्या इन्वेंशन किया है ग्रेहम एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने. तो इसका इन्वेंटेड किया था किसका किया है टेलीफोन का. तो वी राइट हियर इन्वेंटेड. 3 नंबर एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन. Number 4. The municipality arranges to remove the garbage from the city. Number 4. The municipality arranges to remove the garbage from the city. जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वो क्या है जो कचरा होता है उसको हटाने के लिए उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए क्या होता है अरेंज करती है टू रिमूव द गार्बेज यानी कचरा. यहाँ है इन ब्रैकेट डर्ट, गार्बेज एंड डस्ट. वी राइट हियर ओनली गार्बेज. 4 नंबर द म्यूनिसिपैलिटी अरेंजेस टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम द सिटी. शहर में से जो कचरा होता है उसके अरेंजमेंट कौन करती है म्यूनिसिपैलिटी करती है. The municipality arranges to remove the garbage from the city. Number 5. They were dash with cold. क्या है वो धूज रहे थे shivering. They were shivering with cold. ठंडी से धूज रहे थे. यहाँ है trembling, shivering and moving. In bracket है trembling, shivering and moving. Number 5. They were shivering with cold. You write here shivering. So they were shivering with cold. Number 6. The serpent dash into the hole. In bracket crept, moved and went. Number 6. The serpent crept into the hole.
We write here crept. 6 number, the serpent crept into the hole. Number 7, all that is not gold. All that dash is not gold, in bracket, shines, glitters, sparkles, shines, glitters, sparkles. We write here all that glitters. जो चमकती चीज़ें है वो सभी क्या है, सोना नहीं होती. All that glitters is not gold. In bracket we write, यहाँ पर लिखा हुआ है shines, glitters and sparkles. We write here glitters. 7 number, all that glitters is not gold. Number 8, a friend in need is a friend indeed. Number 8, a friend in dash है, यहाँ पर हम लिखेंगे is a friend indeed. इन ब्रैकेट है difficulty, need, trouble. Difficulty, need and trouble. We write here need. Number 8, a friend in need is a friend indeed. Number 9, in winter we wear woolen clothes to keep our body dash. Number 9, in winter we wear woolen clothes to keep our body warm. यहाँ लिखे ब्रैकेट में है warm, hot, heated. क्या है, हम क्या है, वूलन जो कपड़े पहनते हैं वो किस लिए पहनते हैं, अपनी बॉडी को रखने के लिए, वार्म यानी गर्म रखने के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं. In winter we wear woolen clothes to keep our body warm. Now हम आते हैं सेक्शन डी है, जो सेक्शन डी पर हम आते हैं, उसका पार्ट 1 लेते हैं. सेक्शन डी पार्ट 1. स्टूडेंट्स ध्यान रखो, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिखने हैं हर चीज में, और इसमें खाली ब्लैंक से ही लिखना है, और एमसीक्यूज में जो है उसका करेक्ट जो होता है ऑप्शन वो ही लिखना है. यू डोंट मी आस्क अगेन एंड अगेन कि टीचर ये लिखना है वो लिखना है, दैट इज नॉट फेयर. आपको क्वेश्चन तो लिखना है, विथ आंसर के साथ तो क्वेश्चन लिखना ही है, बिकॉज अभी तुमको क्या काम है, घर पर बैठ के लिखना ही है ना, तो फिर आपको क्वेश्चन तो लिखना ही है. इट इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नाउ सेक्शन डी का पार्ट 1 है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो इन द ब्रैकेट. Complete the following sentences using the words given below. जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उससे हमें क्या है, जो कंप्लीट करने हैं सेंटेंस को वर्ड्स के साथ, वर्ड्स लेके जो नीचे दिए गए हैं ब्रैकेट में. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो इन द ब्रैकेट. इन ब्रैकेट में है गोसलिंग, कावहर्ड, स्किन, कैनल, टेस्ट, फ्लावर्स, नेस्ट, व्हील्स, राइडर, महाराष्ट्र. नाउ वी फॉलो द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अ टाइगर इज 2 एनिमल्स. वाटर लिली इज 2 फ्लावर्स. टाइगर एनिमल है तो क्या है, फ्लावर जो लिली है वो भी वो एक फ्लावर है. अ टाइगर इज 2 एनिमल्स. एनिमल्स किस में आता है, तो वाटर लिली इज 2 फ्लावर्स, वो फ्लावर्स के नेम में आता है. तो एग्जाम्पल, अ टाइगर इज 2 एनिमल्स, वाटर लिली इज 2 फ्लावर्स.
नंबर 1 अ हाउस इज टू अस। देखिए हमारे रहने के लिए हमारा घर होता है, तो बर्ड्स के लिए क्या होगा? व्हाट अ नेस्ट इज टू बर्ड्स। हमारे रहने के लिए घर होता है, तो जो पक्षियों का भी जो घर होता है बर्ड्स का, वो क्या कहलाता है? नेस्ट। नंबर 1 अ हाउस इज टू अस व्हाट अ नेस्ट इज टू बर्ड्स। 2 नंबर बार्क इज टू ट्रीज व्हाट स्किन इज टू अस। जो बार्क होती है, छाल होती है ट्रीज की, तो हमें क्या होता है? बॉडी के ऊपर स्किन होती है। 2 नंबर है बार्क इज टू ट्रीज व्हाट स्किन इज टू अस। नंबर 2 bark is to trees what skin is to us. नंबर 3 a kennel is to dogs। जो केनल जहाँ रहता है, उसकी जो रहने की जो जगह है, ड्वेलिंग प्लेस, उसका क्या कहलाता है? कैनल कहलाता है। a kennel is to dogs what a sty is to pigs। जब pigs जा रहे थे उसको स्टाई बोलते हैं। A kennel is to dogs what a sty is to pigs। जो वो pigs है वो लोग स्टाई में रहते हैं, तो और जो डॉग होता है वो कैनल में रहते हैं। नंबर 4 मुंबई इज टू महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ आया हुआ है? महाराष्ट्र में आया हुआ है। मुंबई इज टू महाराष्ट्र व्हाट बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ आया हुआ है? इज टू कर्नाटका। नंबर 4 मुंबई इज टू महाराष्ट्र। मुंबई इज टू महाराष्ट्र व्हाट बेंगलुरु इज टू कर्नाटका। मुंबई जो है महाराष्ट्र में आया हुआ है, तो बेंगलुरु जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में आया हुआ है। तो मुंबई इज टू महाराष्ट्र what Bengaluru is to Karnataka। नंबर 5 a shepherd is to sheep। तो शेफर्ड जो गवाह लाता है, जो शीप चराता है। what a coward is to cow। जो चरवाहा है वो गाय को लेकर जाता है, गाय को रखता है, चराने के लेकर जाता है। 5 नंबर a shepherd is to sheep what a cowherd is to cows। 5 number a shepherd is to sheep what a cowherd is to cows। नंबर 6 a gosling is to a goose। गूस के जो यंग वन होते हैं, उन यंग वंस को बोलते हैं गोसलिंग बोलते हैं। A gosling is to a goose what a duckling is to a duck। तो डक के जो यंग वंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डकलिंग। गूस के जो होते हैं गूसलिंग होते हैं। नंबर 6 a gosling is to a goose what a duckling is to a duck। 7 नंबर a driver is to a car। जो ड्राइवर होता है वो कार चलाता है। कार में क्या होता है? ड्राइवर होता है। what a rider सवार होता है। is to a horse। हॉर्स पे कौन सा होता है? राइडर होता है, जो घोड़े की सवारी करता है, राइडर। तो नंबर 7 a driver is to a car what a rider is to a horse। नंबर 8 a tongue is to test। हम टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। what an eye is to sight। आँख से हम देखते हैं। नंबर 8 है a tongue is to test what an eye is to sight। नंबर 8 a tongue is to test what an eye is to sight। नंबर 9 legs are to us। जो हमारे क्या है? हमको पैर होते चलने के लिए।
नंबर 9 legs are to us what wheels। देखें जो पहिए होते हैं आर टू व्हीकल्स, जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए चलने के लिए क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं। नंबर 9 लेग्स आर टू अस, हमको पैर होते हैं, तो व्हीकल्स को क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं। नंबर 9 लेग्स आर टू अस व्हाट व्हील्स आर टू व्हीकल्स। व्हीकल्स को चलता है, जो व्हीकल्स किसके थ्रू चलता है, व्हील्स के थ्रू चलता है। हम किससे चलते हैं, लेग से चलते हैं। नंबर 9 legs are to us what wheels are to vehicles। नाउ सेक्शन डी का लास्ट जो है पार्ट 2 है, हमको भी लिखना है। ये ब्रैकेट आपको लिखना नहीं है, खाली आंसर ही लिखना है। नाउ सेक्शन डी पार्ट 2, fill in the blanks in the following sentences with suitable adverbs selected from those given in the bracket। जो ब्लैंक्स दी गई है हमें फिल करना है, इसको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुटेबल एडवर्ब्स selected from those given in the bracket। in bracket लिखा हुआ है easily, politely, somewhere, loudly। greedily क्या लिखा है, greedily, anywhere, everywhere, heavily, gently, honestly and brightly। Once again, easily, politely, somewhere, loudly, greedily, anywhere, everywhere, heavily, gently, honestly and last brightly। अब हमें जो ब्रैकेट है उसमें से जो दिए गए हैं, जो सुटेबल एडवर्ब्स दिए गए हैं वो सिलेक्ट करके ब्लैंक्स को फिलअप करना है। In number 1 my pen is missing। I left it somewhere। my pen is missing मेरी पेन खो गई है, मैंने कहीं उसे छोड़ दिया है। तो नंबर 1 my pen is missing, I left it somewhere। हम ब्रैकेट में से क्या लेंगे, somewhere। नंबर 1 my pen is missing, I left it somewhere। Number 2 such nice mangoes don't grow everywhere। such nice mangoes don't grow, यहाँ लेंगे everywhere, हर जगह नहीं होती अच्छी जो मैंगोज होती हैं। they grow only in some parts of our country। ये कहाँ वजह इसकी पैदावार कहाँ होती है, जो कंट्री के अच्छे हैं कुछ पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में ही अच्छी कैरी बनती है, मिलती है। नंबर 2 सच नाइस मैंगोज डोंट ग्रो एवरीवेयर, हर जगह नहीं होती अच्छी कैरियाँ। दे ग्रो ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारा जो अपनी कंट्री, जो अपना मुल्क है उसके कई हिस्सों, कुछ हिस्सों में ही कैरी अच्छी होती है, पकती है, झाड़ होते हैं उसके। नंबर 3 माई फ्रेंड स्टेज समवेयर इन कोलाबा, आई डोंट नो हिज करेक्ट एड्रेस। नंबर 3 माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड रुका हुआ है, यही समवेयर कहाँ कहीं रुका हुआ है, इन कोलंबा में कहीं रुका हुआ है। माई फ्रेंड स्टेज सम वेयर, कहीं यहाँ पर कहीं रहता है कोलाबा में। माई फ्रेंड स्टेज समवेयर इन कोलाबा, आई डोंट में नहीं जानता, आई डोंट नो हिज करेक्ट एड्रेस, मुझे उसका जो करेक्ट एड्रेस है, सही पता है कहाँ रहता है वो मालूम नहीं है।
Number 3, my friend stays somewhere in Colaba. I don't know his correct address. Number 4, is there any good hotel anywhere around this place? Is there any good hotel anywhere around this place? Number 5, we should speak. हमें नरमी से पोलाइटली नरमी से बात करना चाहिए टू द एल्डर्स, जो हमसे बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे वालिदैन हैं, एंड टीचर्स, जो हमारे मुदर्रिस हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनसे हमें कैसे है नरमी से पेश आना चाहिए, बातें करना चाहिए। 5 नंबर में है वी शुड स्पीक पोलाइटली टू द एल्डर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। हम करते हैं ऐसी बात, अपने वालिदैन से भी नहीं करते, टीचर से भी नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते, तो हमें क्या है रिस्पेक्ट भी देना चाहिए और हमेशा नरमी से धीरे से ही बात करना चाहिए। नंबर 5 में है वी शुड स्पीक पोलाइटली टू द एल्डर्स, जो हमसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, एंड टीचर्स। 6 नंबर, द वुमन शाउटेड, जो वो लेडी है वो क्या है चिल्ला रही थी, लाउडली फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्ला रही वो औरत जो थी वो शाउट कर रही थी, क्यों, लाउडली फॉर हेल्प, मदद के लिए वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। नंबर 6 है द मैन शाउटेड लाउडली, जोर से अपन चिल्लाते हैं, जोर से उसे बोलते हैं लाउडली। तो नंबर 6 द मैन शाउटेड लाउडली फॉर हेल्प, मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। नंबर 7 दे लिफ्टेड द सिक मैन जेंटली एंड पुट हिम इन द एम्बुलेंस। नंबर 7 में है दे लिफ्टेड द सिक मैन, जो बीमार थे इंसान उसको कहाँ पर ले गए, जेंटली, एंड पुट हिम टू द एम्बुलेंस, यहाँ लिखो जेंटली। नंबर 8 वी शुड वर्क ऑनेस्टली इफ वी वांट टू कम अप इन लाइफ, हमें क्या है जो काम करना है ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या है ऑनेस्टली काम करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। नंबर 8 में है वी शुड वर्क ऑनेस्टली इफ वी वांट टू कम अप इन लाइफ। नंबर 9 द पुअर ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी, गरीब आदमी, वॉज हंग्री, भूखा था। द पुअर ओल्ड मैन वॉज हंग्री 4 days, कुछ दिनों से वो भूखा था। सो ही एट द फूड ग्रीडीली, वो क्या है लालची भरी निगाह, लालचे फटाफट वो क्या है खा गया खाना। ग्रीडीली यहाँ लिखेंगे ग्रीडीली, ग्रीडी यानी होता है जो लालच जैसी होती है, जो भूखा प्यासा होता है उसको और होता है खाने की तो तमन्ना होती है। तो द पुअर, जो ओल्ड मैन वॉज हंग्री, वो भूखा प्यासा था, जो बूढ़ा आदमी था, गरीब जो बूढ़ा आदमी था। 4 days, कुछ दिनों से भूखा प्यासा था। सो ही, वो खा गया। सो ही एट द फूड ग्रीडीली। नंबर 10 आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, मैं ये जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से सोल्व कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। नंबर 10 आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, इजीली आसानी से ये प्रॉब्लम में सोल्व कर सकती हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। नंबर 10 आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। नंबर 11 द फैट मैन स्लीप्ड,
जो जाड़ा इंसान था वो स्लिप खा गया। एंड फेल गिरा कहाँ पर, हैवीली वजनदार, इनटू द वाटर में वो गिर गया, पानी में गिरा। नंबर 11 द फैट मैन स्लिप्ड एंड फेल हैवीली इनटू द वाटर। वो गिरा और वजन से कहाँ पर, पानी में वो गिर गया। उसका जो बॉडी थी, फैट मैन था, स्लिप्ड एंड फेल हैवीली इनटू द वाटर। नंबर 12 द सन शॉन्स, क्या है, चमकता है, ब्राइटली, एंड सो वी वेंट आउट टू प्ले इन द गार्डन। 12 नंबर द सन शॉन ब्राइटली, चमकदार, वो क्या है, जब सूरज निकलता है, शॉन चमकदार होती है, उसके लाइट ब्राइटली होता है। हम क्या है, वी वेंट, हम गए थे, वी वेंट आउट टू प्ले इन द गार्डन, हम गार्डन में खेलने गए थे। 12 नंबर द सन शॉन ब्राइटली एंड सो वी वेंट आउट टू प्ले इन द गार्डन।